یہ سب آٹومیٹکلی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے عوامل تھے، میں محنت بھی کرتا رہا، اپنے آپ کو بلڈ کرتا رہا، اور جو بھی چیزیں میرے سراؤنڈنگ میں تھیں، جو بھی نیگیٹیوٹی میرے سراؤنڈ میں تھی، لائٹ کا نہ ہونا، گٹر کا ابلنا، سڑکیں ٹوٹے ہونا، پولیس والوں کا روکنا، یہ ساری چیزیں میں نے بھی فیس کی ہیں، اور آپ لوگ بھی بہت سارے لوگ اب تک فیس کرتے ہیں جیسے کہ تقریباً سارے ہی مڈل کلاس فیملیز جو ہے اپنی لائف کو شروع کرتے ہیں۔ میری لائف کی ابتدا بھی اس طرح سے ہوئی۔ میں اپنی فیملی میں سب سے بڑا ہوں بہن بھائیوں کے اندر، اور والد صاحب جو ہے وہ جاب کرتے تھے۔ بس اسی طرح سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھائی کی ابتدا ہماری پیلے اسکول کی ہے، سرکاری اسکول کے اوپر، اور دریوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھا۔ جس طرح کے حالات تھے اس زمانے میں، لوگ جو تھے وہ کافی کانٹینٹ ہوتے تھے، تو ہم بھی کنٹینٹ ہی تھے، لیکن بہرحال انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کرکٹ بھی کھیلنی ہوتی ہے، تو دو ہی شوق تھے، یا تو پڑھ لیتے تھے جتنا پڑھ سکتے تھے، یا کرکٹ کھیلتے تھے، اور اسی طرح سے پل کے ہم بڑے ہوئے۔ میری زندگی جو ہے وہ کراچی کے اندر ہی گزری، اور پہلے بنس روڈ کے اوپر ہم رہا کرتے تھے تھوڑے عرصے، میں بہت چھوٹا، مجھے اتنا یاد نہیں ہے پھر، لیکن زیادہ تر ٹائم جو ہے میرا بچپنا وہ نارتھ ناظر آباد میں گزرا، اور میں نے وہیں پہ ایک اسکول سے، سرکاری اسکول سے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے شپونس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ اس دوران میں ظاہر سی بات ہے زندگی کے چیلنجز آتے ہیں، اور جو وہاں اس وقت حالات تھے، اور ماشاء اللہ اور ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور جو پہلا والا ماشاء اللہ تھا وہ کافی سخت تھا، تو وہ ساری چیزیں یاد ہیں مجھے، اور ابھی کس طرح سے لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے تھے، اور کیا چیلنجز ہوتے تھے، اور کس طرح سے کرفیو لگا کرتے تھے، ان ساری چیزوں سے بہرحال گزرتے گزارتے جو ہے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت اپنے لیے کرنا شروع کر دیں۔ تو جو پہلی انکم میں نے کمائی وہ ٹیوشن سے تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاؤں، اپنے والد صاحب سے نہ لوں، تو میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، اور وہ ٹیوشن سے مجھے اتنے پیسے آ جاتے تھے کہ میں اپنی ٹیوشن کے پیسے بھی دے دیتا تھا، اور کرائے کے اوپر اس زمانے میں لائبریری میں کتابیں ملا کرتی تھیں، ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، تو عمر و یار کی کتابیں اور ابن صفی کی کتابیں لا کے پڑھا کرتے تھے، 4 آنے 25 پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ ایک دن کا کرایہ ہوتا تھا اس کتاب کا۔ تو پڑھنے پڑھانے کا شوق کیونکہ رہا، اس لیے چاہے وہ کسی بھی طرح کی چیز پڑھی ہو، نونیال پڑھا ہو یا تعلیم و تربیت پڑھی ہو، اور اس کے بعد پھر ریڈر ڈائجسٹ پڑھا ہو، پڑھنے نے بہت ہیلپ کیا۔ زندگی کو آگے بڑھنا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی نالج بیونڈ ٹیکسٹ بک ضرور بڑھانی چاہیے۔ ٹیکسٹ بکس بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور ٹیکسٹ بکس ہمیں بے پناہ پرنسپلس کے اوپر چیزیں سکھاتی ہیں، مگر جو انٹرسٹنگ چیزیں اس کے بعد ہوتی ہیں وہ ہمیں وہ کتابیں سکھاتی ہیں جو ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی، جو ایکسپیرینشیل بکس ہوتی ہیں۔ سو مجھے ایکسپیرینشیل بکس پڑھنے کا شوق رہا، اور میں پڑھتا بھی رہا، اور جیسے ٹوٹا پھوٹا لکھنا آتا تھا لکھتا بھی رہا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جس نے مجھے اپنی آگے کی پروفیشنل لائف میں بہت ہیلپ کیا۔ دیکھیے، ایسے کنٹری میں جب آپ گرو کر رہے ہو جہاں پہ اپرچونیٹیز تھوڑی لمیٹڈ ہوں، اور سفارش اور دوسری ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہے کہ موجود ہیں وہ ہو، تو چانسز ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے کس طرح سے۔ تو میں ہمیشہ چیزوں کو کیونکہ پازیٹیولی دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے جو ہے میرے چیلنجز مختلف طرح کے تھے۔ مثال کے طور پہ میرا چیلنج یہ تھا کہ میں نے بی کام کیا ہے، اور میں نے ماسٹرز کے اندر میں ہوں، اب میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، تو مجھے کس طرح کی جاب ملے گی۔ میرے والد صاحب پاکستان اسٹیل میں جاب کرتے تھے، اور وہ اس وقت کے لاء کے حساب سے، پالیسی کے حساب سے، اپنے ایک بچے کو وہ پاکستان اسٹیل میں جاب دلوا سکتے تھے قانونی طور پہ۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، مرحوم میرے والد صاحب نے، کہ بھائی یہ ایک آپشن ہے، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جاب کے لیے کر دیتا ہوں، اور وہ پھر ایک پروسیس ہوگا انٹرویو وغیرہ کا، اس کے بعد پھر تمہیں جو ہے جاب مل جائے گی۔ اب میرا نظریہ کچھ عجیب تھا۔ میں نے اس سے کہا، بابا بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل میں اس زمانے میں شاید 18-19 ہزار لوگ کام کرتے تھے، بھارت بہت بڑا ادارہ تھا۔ میں نے کہا جس ادارے میں 18-19 ہزار لوگ کام کرتے ہوں گے، وہاں پہ میرا تو کوئی ویلیو بنے گی نہیں، میں کیسے اسٹینڈ آؤٹ کروں گا۔ 18-19 ہزار لوگوں میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، جبکہ آپ بالکل جونیئر پوزیشن سے
कहीं पे दाखिल हो। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे वालिद साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नतीजा ये निकला कि मैंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और मैंने पाकिस्तान स्टील मिल में जॉब नहीं की। मैं ये समझता था और मुझे इस चीज़ का इदराक था, समझ थी कि मैं शायद एक पीआर, सेल्स और मार्केटिंग का आदमी हूँ। हालांकि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और मैंने प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट किया था, मगर मैंने स्विच किया, बीकॉम किया और फिर एमए इकोनॉमिक्स किया। मैं समझता था कि, और मैं भी समझता हूँ कि मुझे रियलिटी ऑफ लाइफ जो है उसको समझने का बहुत शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास उस एज में थी जब मैं 18 साल का, 19 साल का था। तो उस वक्त से इस किस्म की चीज़ें मैं किया करता था। तो जनाब वो चैलेंज था बहरहाल कि आपके हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, जॉब्स कहाँ ढूंढेंगे, मगर मैं लगा रहा। मैंने मुझे पहली जो जॉब मिली वो एक बिल्डर्स के पास मिली, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब थी। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना कितना मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे सेठ की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना। क्योंकि मिसाल दी जाती है, उस ज़माने में दी जाती है कि सेठ का पेट नहीं होता, विच मीन्स कि जितना भी डाल दो वो कम है उसके लिए। विच इज़ समहाउ ठीक भी है, क्योंकि जब आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हो, विच इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई थिंक कैपिटलिस्ट सोसाइटी ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू किसी और फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ के, क्योंकि कंपटीशन होता है और लोग पैसे कमाना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग टू डू इकोनॉमिकली। सो बहरहाल उस जॉब ने मुझे बहुत बूस्ट दिया। सो कहना चाहिए कि जो भी नेगेटिव चीज़ें ना, उसमें से आप पॉजिटिविटी कैसे निकालते हैं, दैट इज़ द मैसेज मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आगे तक पहुँचाऊँ। आप जो हमारे सुनने वाले हैं, जो दोस्त हैं, कि देखिए मेरे लिए नेगेटिविटी क्या थी कि वहाँ पे लॉन्ग आवर्स होते थे, काम का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, सारी चीज़ नहीं थी। मगर एक चीज़ थी कि उन्होंने ये देख लिया, जो सॉर्ट ऑफ जो उसके ओनर्स थे, सेठ थे, उन्होंने देख लिया कि ये एक लड़का जो है ना, ये कुछ अकल से काम करता है, ये चीज़ों को ना भी कर देता है और कंट्रीब्यूट करता है, मशवरा देता है, बजाय ऐसे कि यस सर करे। तो मैं सवाल किया करता था और मैं यस सर नहीं किया करता था। मतलब कोई भी काम करना है तो मैं सोचा करता था कि ये काम लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक कोर्स के ऊपर भेजा, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के अंदर एक 5 दिन का प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स था। और मुझे आज तक याद है और मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं दोबारा कभी मिल नहीं सका उन साहब से जिन्होंने वो कोर्स पढ़ाया था। उनका नाम था अमजद हुमायूं, जो यूएस से आए थे, और वो उस ज़माने में हॉलीडे इन कराची होता था, उसके जनरल मैनेजर थे। उन्होंने वो कोर्स पढ़ाया था। दैट कोर्स वॉज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर इन माई लाइफ उस एज में, बहुत अर्ली एज के अंदर। उस कोर्स में उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था। और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये प्रिंसिपल जो हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, क्या यही प्रिंसिपल हम अपने ज़ात पे नहीं लगा सकते? क्या हम इन प्रिंसिपल से फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो मैंने अपने आप को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करना शुरू कर दिया अपनी प्रोफेशनल करियर के अंदर। तो 4 Ps, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस, इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब लाइफ जाहिर सी बात है, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी से नेटवर्क करते हैं, कि आपकी स्किल्स क्या है। तो समहाउ क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था तो मेरी लिखने पढ़ने की स्किल्स थी। उस ज़माने में मैं अखबार भी पढ़ा करता था और उस अखबार के पढ़ने ने मुझे बड़ा फ़ायदा किया। मैंने एक जॉब देखी जो कि बरतानिया के सफारत खाने में, ब्रिटिश कॉन्सुलेट कराची की जॉब थी। मैंने वहाँ अप्लाई किया। मेरा एक बहुत बड़े पूल में से शॉर्टलिस्ट हुआ मैं, मेरा इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ और मुझे वहाँ पे 1990 में जॉब मिल गई, 1990 के अंदर। और वो एक इंस्टीट्यूट था जहाँ से मैंने लर्न किया और ग्रो किया। मैं तरक्की करते करते वहाँ पे उनका जो कमर्शियल डिवीज़न, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखता है, मैं उसका हेड बन गया फॉर पाकिस्तान। और मुझे ये भी एजाज़ मिला कि क्वीन जब पाकिस्तान आई थी 1997 में और ड्यूक ऑफ एडनबरा आए थे, मैं वाहिद पाकिस्तानी था जो उनके फ्रंट एंड ऑन्टराज का हिस्सा था। और मैंने क्वीन और ड्यूक को बहुत करीब से देखा है और उनके 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 साथ जो सफ़र किया और बहुत सारी इवेंट्स में शामिल रहा। सो वो जो लर्निंग है वो कभी ख़त्म नहीं होती, मेरी लर्निंग जारी रही। और 2006 में मुझे फिर एक और जॉब ऑफ़र हुई। उससे इन बिटवीन मैंने शायद 17 साल तकरीबन वहाँ जो काम किया, वो मैंने शायद एक ही जगह अप्लाई किया था जॉब के लिए, और मैंने फिर उन्होंने मुझे रखा नहीं, बाय द वे। सो
आई थिंक वट एवर द रीज़न मे बी, बट उन्होंने मुझे रखा नहीं उस जॉब के ऊपर। खैर, जॉब चलती रही, वहाँ मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करता रहा, कराता रहा। और 2006 में फिर मुझे एक यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक इदारा था, उन्होंने पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोला, उन्होंने मुझे वहाँ पे ऑफ़र की जॉब, मैंने ज्वाइन कर लिया। और इवेंचुअली फिर फाइनली मैं उनका कंट्री डायरेक्टर बन गया और रीजनल डायरेक्टर बन गया। और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो मैं मैनेज किया करता था और ट्रैवल करता था। तो ये मेरी कैरियर जर्नी है और जो बहुत एक्साइटिंग है। मैंने हर लम्हा एंजॉय किया। मैंने किताब लिखी, एक के बाद एक दूसरी किताब लिखी, फिर तीसरी लिखी, लर्न करता रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। आईबीए के टेस्ट में मैं बाय द वे फेल हो गया था, एंट्री एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। और फिर मैं आईबीए में जाके गेस्ट लेक्चर किया करता था, मुझे इनवाइट किया जाता था। ये सब ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, इसके पीछे ज़ाहिर है बहुत सारे अवामिल थे। मैं मेहनत भी करता रहा, अपने आप को बिल्ड करता रहा। और जो भी चीज़ें मेरे सराउंडिंग में थी, जो भी नेगेटिविटी मेरे सराउंड में थी, लाइट का ना होना, गटर का उबलना, सड़कें टूटे होना, पुलिस वालों का रोकना, ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं और आप लोग भी, बहुत सारे लोग अब तक फेस करते हैं। मगर इस किसी चीज़ ने मुझे रोका नहीं। सो अगर आप रुकते नहीं हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। और जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो इवेंचुअली आप वो मैराथन विन कर लेते हैं। और मैं अभी तक इस मैराथन में मौजूद हूँ और मैं बहुत सारी नई चीज़ें कर रहा हूँ। 2019 में मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव कर गया था। यहाँ पे मैंने अपनी नई लाइफ, नया करियर शुरू किया एंड आई री इन्वेंटेड माई सेल्फ। सो इस नए कंट्री में अपने आप को री इन्वेंट करना और अपने आप में से नया हमाद निकालना वॉज अ बिग चैलेंज। मगर मैं सोचता रहा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद है, जो जिसके बारे में बहुत पैशनेट हूँ मैं, क्या मैं उसको अपना करियर ना बनाऊँ? क्या मैं अपने आप को दोबारा रीपोजिशन ना करूँ? तो वो मैंने ढूंढ लिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक कोच और मेंटोर छुपा हुआ था, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करता रहता था ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। बहुत मेंटरिंग कोचिंग की। और मेरी जो किताब भी है, बूटस्ट्रैपिंग योर करियर, वो किताब अपने करियर के बारे में है कि आप अपने करियर को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने क्या सीखा। खैर, अब मुख्तसरन ये है कि मैं जब यहाँ आया तो मैं अपनी जॉब का आखिरी हिस्सा पूरा कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ जो कि इनोवेटिव हो, जो बहुत लोग ना कर रहे हो, जो मुश्किल भी हो, क्योंकि ऐसी चीज़ जो बहुत लोग नहीं कर रहे थे वो मुश्किल होती है। मगर मैं अपने पैशन को पालूँ वहाँ पे। तो मैंने जनाब अपना एक पूरा कोचिंग एंड कंसल्टिंग का बिज़नेस शुरू किया, जो कि मैं लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलपमेंट, लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना चाहिए, लिंक्डइन कैसे जॉब सर्च में हेल्प करता है, कैसे करियर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फ्रीलांसर्स को कैसे हेल्प करता है, इस पे मैंने कोर्सेज डेवलप किए। मैं ग्रुप कोचिंग भी करता हूँ ग्लोबली, जूम बेस्ड। मेरे पास कंसल्टेंसी असाइनमेंट आते हैं जिसमें मैं लिंक्डइन प्रोफाइल लोगों की सही करके देता हूँ। और अब मेरा एक ऑनलाइन लिंक्डइन एडवांस कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक यहाँ पे शेयर कर लेंगे। सो अगर किसी को एडवांस कोर्स देखना हो जाके या लर्न करना हो तो दैट कैन बी डन। तो आप जाके उसको ख़रीद सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि आपको आपका लिंक्डइन कैसे हेल्प कर सकता है। ये एक इनोवेटिव चीज़ थी और इस इनोवेटिव चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बेशुमार चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ। मगर उन्हीं में से सब कुछ मैं लर्न भी कर रहा हूँ, उसी में से मैं रास्ते भी निकाल रहा हूँ। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं बेशुमार लोगों को मदद कर रहा हूँ इस काम के सिलसिले में, जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, जिससे वो जॉब्स ढूंढ पा रहे हैं, जिससे वो अपनी करियर डेवलपमेंट का काम कर पा रहे हैं। अभी जो है वो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम ये ना, अगर जो मॉडर्न टूल है ख़ासतौर पे, उन मॉडर्न टूल्स को अगर हम यूज़ ना करें और इफ़ेक्टिवली यूज़ ना करें तो क्या हम ग्रो कर सकते हैं? शायद नहीं। हमें उनको ग्रो करने के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने का अमल जो है ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। आप जिस वक्त पैदा होते हैं और जिस वक्त कब्र में जाते हैं, मरते हैं, उस वक्त तक आप सीख रहे होते हैं कोई नई चीज़। अगर आपने कोई चीज़ नई ना सीखी तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इसका मतलब ये था कि तुम्हें सीखते रहना चाहिए और सीखते रहने का अमल जो है वही आपको आगे लेके जाता है। इसको क्लोज करने के लिए मैं चाह रहा हूँ आपको दो चीज़ों को बताना। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लाइफ में उन दो चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो वो उसके बियॉन्ड पे बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। और वो दो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं।
ایک ہے ڈیزائر، کہ کیا آپ کو ڈیزائر ہے وہ کام کرنے کی، کیا آپ کو ڈیزائر ہے وہ چیز اچیو کرنے کی. اگر وہ ڈیزائر ہے تو اس کا راستہ بن جائے گا. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے فیتھ، یقین. اگر آپ کو اپنے پہ یقین ہے، اپنے سسٹم پہ یقین ہے جو آپ کے اراؤنڈ ہے، قدرت پہ یقین ہے، تو ان دو چیزوں کے کمبینیشن سے آپ کو سکسیس یقینی ہوگی. سکسیس کا درجہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، مگر سکسیس ول بی یورس. دس از واٹ آئی ڈیڈ ان مائی لائف اینڈ آئی ایم شیور یو کین ڈو اٹ ٹو. This is Hamas Siddiqui. I'm a global LinkedIn coach.